جا رہی ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر ان کو. دکھائیے. ماشاء اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکن شورا حاجی اسد مدنی اتاری ہماری مجلس جامعۃ المدینہ پاکستان کو یہ دیکھتے ہیں اور آج انہوں نے سوالات کرنے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. رمضانی کسوٹی. آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ جی نہیں. کوئی مقدس مقام؟ جی نہیں. اس کو ٹھکرا کوئی کتاب؟ جی نہیں. اس کو ٹھکرایا جہاں نے ماہ رمضان. کوئی مقدس جانور وغیرہ؟ مقدس جانور وغیرہ وغیرہ کا آپ نے جی وغیرہ سے تو نہیں چلے گا کام. ایک سوال مائنس وغیرہ؟ مائنس وغیرہ. جی نہیں. کوئی مسجد؟ جی نہیں. کڑی کھو دیا آپ نے. چلیے آگے بڑھیے. رمضان رمضان ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان. رحمت رب کی لوٹا. کوئی مقدس پہاڑ وغیرہ؟ مائنس وغیرہ. جی نہیں. اسد بھائی مقام پہ جب لا آ چکا ہے تو پہاڑ کے مقام سے باہر ہے مقام سے, اور یہ مسجد بھی کیا مقام سے باہر ہے. درست فرمانا. مقام کی بھی تعین تو ہوگی نا کہ کیا مقام. مسجد وہ مقام ہے, پہاڑ ہے. میرا خیال سوالات ہی کر رہے ہیں وہ درست ہے. نہیں اصل کوئی جگہ آ گئی جنت بھی ظاہر ہے مقدس مقام مقام ہے. سدرۃ المنتہا بھی مقدس مقام ہے. تو مقام کی تعین تو ہوگی نا بھائی کون سا مقام. اونلی مقام. مقام تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے سوالات کریں گے تو کسی میں ہاں آ جائے گا نا کہ ہاں بھائی یوں. آپ نے اصل مطلق مقام کا منع فرمایا تھا نا, اس لیے یہ پھر کبھی مسجد کا پوچھ رہے ہیں تو کوئی پہاڑ کا پوچھ اچھا رہے ہیں. اچھا مقدس مقام کا منع کیا ہے. ہائے واہ. ہاں پھر یہ کہ وہ پھر سوالات کی حاجت نہیں تھی. مجھے میں نے ہاں کیا ہے. تو ہاں تو نہیں ہے نا. یہ ہاں نہیں ہے. کوئی مقدس وقت؟ کوئی خاص وقت؟ جی نہیں. کیسی رونق ہے مساجد 6 ہو گئے اسد مدنی. کیسی رونق ابھی تک لا ہی آ رہا ہے سمجھ میں. جی تو آپ کو نام لانا ہے نا. بس ہمت ہار گئے. اسد بھائی میرا مشورہ جاندار کا کر لینا چاہیے. صرف جاندار میں جنات کا تو اب ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے مسجد الجن مراد ہو. مقدس مقام تو وہ بھی ہے. مقام تو لا ہے. مقام نہیں ہے. مائنس ہو گیا. اب جاندار کا اگر ہوتا سارے جو لوگ وہ آ گئے. میرا مشورہ جاندار کا کر لینا چاہیے. کیا وہ شاید جاندار ہے؟ کوئی ایسی شے ہے جو جاندار نہیں ہے. جاندار جس کو کہتے ہیں وہ مطلب جس پر اطلاق ہوتا ہے عام طور پہ
वो मुराद नहीं है। ठीक है असद, अब ये सवाल होता है क्या सर की आंखों से देखना मुमकिन, या दूसरा है कि क्या वो ऐसी शय है कि जिससे एक आदमी आसानी उठा सकता हो? इसमें शायद को पत्थर वगैरह या कोई इस तरह की सूरत भी हो सकती है। नहीं, ऐसी शय जिससे एक आदमी आसानी उठा सकता हो, ये भी सवाल बन सकता है, ताकि हम पर हजम वगैरह की तरफ जाए ना कि वो मैंने उठा भी आसानी सकता हो, जोर लगा के उठाए तो ये फिर एक सवाल के दो हिस्से हो गए ना। तो आप मना कर देना ना, बासानी तो ये उठ गया, बता दीजिएगा। टेबल उठाऊंगा तो एक आदमी उठा सकता है, आसानी एक आदमी उठा सकता है। अब अलमारी जैसे अलमारी को तो कोई नहीं उठा सकता ना। क्यों नहीं उठा सकता? ये देखो सलमान में मुस्कुरा रहे कि अलमारी उठा के रखी थी ना साइड पे, नहीं। ठीक है, सलमान में अलमारी लेके घूमे। अच्छा अब ये कि ये मजदूर होते हैं यार, उठा ही लेते हैं ना यार। अच्छा अब ये कैसे तयन हो कि जो आप मशवरे और एक दूसरे के साथ जो अता फरमाते, इसमें हम घड़ी का क्या करें? क्योंकि आप घड़ी तो निकल जाती है। पुराने मशवरा घड़ी नहीं करनी चाहिए। नहीं क्यों, तो ये तो फायदा क्या होगा? दौरान मशवरा घड़ी ना चले तो जो सोच रहा है तो वो सोचने के दौरान घड़ी ना चले तो फिर घड़ी कब चले? मशवरे अपनी जगह पर चलने चाहिए, घड़ी नहीं रुकनी चाहिए। घड़ी काउंट नहीं होगी। नहीं, घड़ी रुकेगी तो फिर तो घड़ी रुक जाएगी ना। उसी सवाल के तौर पर आप भले एक दूसरे के साथ मशवरा करें, लेकिन उसी वक्त के दौरान ही मशवरा करके आपको सवाल करना चाहिए। बजा फरमा रहे। जी हाँ, घड़ी चलाइए और ये 8 हो गए, अब ये 9 की घड़ी चल रही है। एक आदमी बासानी उठाना मुमकिन है? अपनी बासानी को निभाए जाओगे यार, बासानी को निभाए जाओगे। कसम के भी कफारे होते हैं। अब लफ्ज बासानी माइनस कर दे, एक आदमी उठा सकता है कि नहीं, बोल देना। जो लफ्ज निकल गया तो निभाना जरूरी है। बिल्कुल। अब इसमें ये नवा सवाल खत्म। आपने सवाल सबसे बिल्कुल तक पहुंचा दिया, पलक झपकने में तो हाजी शामिल नहीं होगी। हाजी रजा साहब, भाईजान 9वें सवाल का जब टाइम भी चला गया, हम घड़ी टाइम खत्म हो जाएगा, हम सवाल गिरा देंगे। क्या एक इंसान उस चीज को उठा सकता है? मालूम नहीं। अब असल सोचे ऐसी कौन सी चीज जो अमीर समझते नहीं, यहाँ मालूम नहीं है कि ऐसी कौन सी चीज जिससे ये सवाल ये जो फरमा रहे हैं घड़ी चल रही है, याद रखिएगा। और अब उठाना मुमकिन है कि नहीं ये भी पता नहीं है। घड़ी चल रही है, तो देखा जा सकता है। आपका आखिरी सवाल रह गया, ये भी पता नहीं है, शायद नहीं देखा जा सकता। अब लगता है कि नहीं, मेरी शे जो है वो उसका हजम तो कुछ होगा, लेकिन अब ये कि इसको पता नहीं उठा सकते हैं या अब वो नजर आती है या ओझल। अब फिलहाल तो नजर से ओझल है। चलो ये आपको ऐसी खबर नहीं है कि उसको किसी ने देखा और वो रिवायत करे, हिकायत करे कि मैंने फुला जगह इसको देख लिया। जैसे मैंने कहा सिदरतुल मुंतहा, ये नजर तो नहीं आता ना, लेकिन इसका वजूद है, कोई तो हजम है उसका। सवाल 11 हो चुके हैं, अब आपने सिर्फ जवाब देना है और कई इशारे आपको मिल चुके हैं। ये वाला बात कैसे माइनस हुआ? क्योंकि अमीर सुन्नत फरमा रहे थे ना, नहीं, जो भी मौका ही नहीं मिला। मेरे शहजादे, जो भी आपस में कलाम होगा, घड़ी अपनी जगह चलती रहेगी, उसी वक्त के दौरान ही सवाल करना है। अमीर सुन्नत जब कलाम फरमा मेरी रहे दरख्वास्त है, अपना सवाल करें। मेरी दरख्वास्त, इससे मतलब कसौटी रहनी चाहिए, वरना डिटेल इतनी तफसील होती रहेगी तो फिर करेंगे आप जो है ना वो अभी बात ना करें, वरना मेरा टाइम चले जाएगा, मेरा जो है ना वो क्या कहते हैं टाइमर वो हो जाएगा पूरा, मैं अपना सवाल कर लूंगा। ये असद भाई ये करेंगे अभी। अब असद भाई ने जवाब देना है। वैसे तो सवाल भी वो शुमार बनता है अभी। चले आपके कहने पर एक सवाल बना लेते हैं, लेकिन कहने पर नहीं, उसूल देखें अमीर सुन्नत के अदब से, अमीर सुन्नत अगर कलाम फरमा रहे हैं तो क्या असद अमीर सुन्नत की बात काटेंगे? अब उसूल देखें, मेरे कहने पर ना करें। सवाल कीजिए। इशारा अगर वो अता हो जाए तो जी असल में ये सवाल एक हो जाए क्या उसका ताल्लुक मौजूदे से?
میری بخشش فرح क्या उस किसी शहर का नबी ताल्लुक से किसी मोजज़े से किसी नबी से सरासर निस्बत ये कर लिया जाए। जी सवाल कर लिया असद भाई ने। मौजिज़े का कोई इसमें मेरा ख्याल है मौजिज़ा हो ऐसा समझ नहीं आ रही। अलबत्ता मेरी मुराद इस है कि और इशारा बताऊं, कुरान करीम में तज़किरा है, शायद आप पहुंच जाएंगे। वैसे तो 2 दफा सिदरतुल मुंतहा का जिक्र हुआ और सिदरतुल मुंतहा का तज़किरा कुरान पाक में भी है। वो तो अब आपने पहुंचना है ना। आपकी मुरादी शहर सिदरतुल मुंतहा है। जवाब दुरुस्त नहीं है। जन्नत का भी तस्करा किया मैंने, तस्करा करने को जन्नत का भी तस्करा किया। अगर कोई आसान इशारा मिल जाए तो उसमें खाने पीने की चीजों असल ये जो भी रमजानी कसौटी इसमें ला ज्यादा हुए, तो अगर कोई आसान कोई इशारा मिल जाए। वो अब तो फिर पहुंचाना ही, सारे पहुंचाना तो पड़ेगा ही। वो ऐसी शय है जो कई तबर्रुकात पर मुहित या मुश्तमिल है। ताबूत सकीना। असद भाई मेरा ख्याल है कि अब हम हाजी रजा से रोजाना ये कसौटी किया करें, दूसरे को तकलीफ न दें। या जवाब ही आपको देना होता है तो ताबूत सकीना। असद भाई यही आपकी मुरादी शहर ताबूत सकीना है। जवाब दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि तहज्जुद की नमाज में कुल कितनी रकातें हम अदा करें और इनमें क्या पढ़ें, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है सहरी के बाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहज्जुद रात को सोकर उठकर पढ़ी जाती है, चाहे 1 मिनट के लिए सो जाए, इशा के बाद, रात नहीं, इशा पढ़कर सोए, चाहे 1 मिनट के लिए सोए, तहज्जुद का वक्त हो गया, उठे तो अब ये क्या, 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 8 रकात 12 भी पढ़ी जा सकती है, तो कम से कम 2 रकात। इसमें आला हज़रत ने ये फरमाया कि जितना कुरान याद है वो सारे का सारा पढ़े। ये भी है, मतलब नहीं, ये जरूरी नहीं है। जिस तरह 2 रकातें नॉर्मल आदमी पढ़ता है उस तरह भी पढ़ सकते हैं। मसलन सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह शरीफ 3 बार पढ़ लें 1 रकात में, तो 2 कुरान खत्म हो जाएंगे, खत्म का सवाब मिल जाएगा। या 1 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लें तब भी सही है, या जो सी सूरतें जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक पढ़ लें तो भी हो जाएगी तहज्जुद। मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखा है कि वो लिल्लाह माफिस समावात से लेकर ख़त्म सूरा, यानी कि वो लिल्लाह माफिस समावात, ये सूरतुल बकरा के आखिरी रुकू है, तो सूरतुल बकरा के आखिरी रुकू पढ़ ले तहज्जुद में, तो ये 2 हिस्से में पढ़ ले उसको, तो बड़ा मज़ा आता है। और इस तरह मुफ्ती अहमद यार खान ने अपना लिखा है, तो ये पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो जो आजकल तो सहरी के लिए उठते हैं, इनके लिए तो ये गोल्डन चांस है ना कि वो ऐसा वक्त निकाल लें 2-4 मिनट कि तहज्जुद भी मिल जाया करे, मगर इस सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ये भी फजीलत हासिल होगी, फिर अल्लाह तौफीक दे तो सारा साल इसको निभाएं। और जो इस्लामी बहन है वो तो सारा साल पढ़ें तो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो फजर का वक्त शुरू होने से पहले कुछ पहले उठ जाएं, वुज़ू कर लें और तहज्जुद पढ़ लें, और जो ही फजर दाखिल हो वक्त, तो इनके लिए अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़ना मुस्तहब है, तो ये फजर पढ़ लें एक ही वुज़ू से।
कुछ जवाब आया, आवाज आई। सूरह आले इमरान की आखिरी आयतें पढ़ना भी ये सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार है। सूरह आले इमरान की आखिरी आयतें भी ये भी पढ़ सकते हैं, सुन्नत। जी जी, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ से। माशाअल्लाह। तो बहरहाल ये कि इस्लामी बहनें ये बासानी, इसको लफ्ज़ बासानी कहे तो चल जाएगा कि उठना ही है जब फजर के लिए तो 12 मिनट पहले उठ जाए और तैयारी करके वुजू करके 2 रकात पढ़ के सलाम फेर लें, सुबह सुबह का वक्त हो गया, अब फजर पढ़ लें जब अजान हो ले मोहल्ले में। ये बेहतर है कि अजान के बाद पढ़ें फजर, तो इस तरह मतलब ये कि तहज्जुद मिल जाएगी। इसी तरह जहाँ मस्जिदें नहीं है लोग या जिन पर किसी वजह से वो जमाअत मस्जिद की वाजिब नहीं है, जो घर में पढ़ते हैं मरीज वगैरह, तो वो भी अगर रात को इस तरह उठें कि तहज्जुद पढ़ लें, फिर एक ही वजू से फजर पढ़ लें, तो यूँ मुफ्त में एक सवाब मिल जाएगा ना, कम मेहनत में। तो इनको तो ये चांस हासिल कर ही लेना चाहिए, लेकिन यार जहन नहीं है। मैंने ये अंदाज़ा लगाया, जहन नहीं होता तहज्जुद पढ़ने का, रात को उठते बीच में मौका होता है फिर भी तहज्जुद नहीं पढ़ते, तवज्जो नहीं, हालांकि फजर पढ़ेंगे तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे। तो ये सवाब हासिल करना चाहिए सबको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह ताला तूबु इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, आज माशाल्लाह हमारे नात खान इस्लामी भाई दोनों मौजूद हैं, तो हम कुछ चलते हैं आगे। एक लफ्ज़ हर्फ होगा, वो देखना है कि वो हर्फ के पीछे क्या है, फिर वो पूरा करना है एक हर्फ से पूरा लफ्ज़, है ना महमूद भाई? वो एक तो अशार हमारे यहाँ नाथानों से पहले होते हैं, और वो समय असद भाई हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं, वो इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। चले फिर असद भाई की तरफ चलते हैं। असद भाई को ले लिया जाए। ये आपके पास ये नंबर दिखाएगा स्क्रीन पे, और इसमें से एक नंबर असद भाई ने चॉइस करना है। जी असद मदनी। एक असद भाई की ज़ियारत होगी। मकाम ये असद भाई। मुझको आजाद जहन्नम इसमें मीम है, से इलाही कर दे, बाग जन्नत के दिलाने माहे रमज़ान आया, बाग जन्नत के 15 दिलाने 12 सेकंड। गलती हो गई, या चले या मीम। मैंने जो काम खुदा मकाम है कोई। से बिगाड़े अपने, मैंने जो काम खुदा तो से बिगाड़े अपने, मेरी वक्त पूरा हुआ। मीम को बनाने नीम तो पहले फरमा दिया था, वो लग गया था। अब नीम को बनाने माहे रमज़ान आया, रहमत
چلے دوبارہ گھڑی لگائیں. با ہے اس میں. با بے بے نہیں ہے. بے کہا نا آپ نے؟ بے کہا ہے نا آپ نے؟ جی. با بے جو وہ بتایا آپ دیکھ لیں. آپ واو نہیں کہا. با آ گیا. جی اب تو پورا کر دیں اسد بھائی. بہت قریب پہنچ گئے آپ. گھڑی کا وقت پورا ہوا. جی غلطی لگ گئی. دوبارہ ایک اور موقع لگا دیں. را ہے. را رے. جی جی. کافی آسان ہو گیا ہے اسد بھائی. یہاں تو جوابات مل گئے. مجھے کافی دیر ہوئی. میری بخشش فرما تا جوش رحمت تے کا دکھانے ماہ رمضان جوش رحمت کا دکھانے ماہ رمضان رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان عین عین. اللہ. آخری غلطی اگر ہو گئی تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو مدد کے ہم حاجی رضا کی طرف بڑھیں گے, شہزادہ حضور کی طرف. وہ پھر آپ کی کچھ مدد کریں. ابھی آپ کے پاس ایک گنجائش موجود ہے. مقام ہے, مقدس مقام ہے, مشہور مقام ہے. وقت پورا ہو گیا. جی زیرو لگا دیں. اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں. وہ بڑے شہزادے حضور سے عرض ہے کہ وہ چاہیں, آپ چاہیں تو ان کی مدد لے سکتے ہیں. چل رہے ہیں وہاں. جی 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 شہزادہ حضور کو دکھائیں. بہت آسان نہیں ہے. جی وہ میں تو بالکل ہم عرض کر نہیں. آپ تو وہ ہاتھ لے کر وہ لینڈ ہی کرا دے جہاز. اشارہ دے حضور. ایسا کچھ حصہ پڑھا نا ابھی. سبحان الذی اسری. معراج شریف تھوڑا معراج شریف کا واقعہ تھوڑا ذہن میں لائیں. مکہ شریف سے تھوڑا سفر معراج شروع کریں. لیکن اس میں یہ بیت المقدس اصل میں اوپر والے صرف دیکھ رہا تھا, نیچے والے جو تینوں ان کی طرف توجہ نہیں جا رہی. میں وہی پورا کرنا چاہ رہا تھا. کیا بات ہے آپ کی. بیت المقدس ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.